Honorable members, a very good morning to all of you. I welcome you all to the 55th National Youth Parliament 2022 and I hope that this session will be fruitful. We begin today's session with oath and affirmation of our newly elected members. Secretary General, please. श्री राघवेंद्र प्रसाद मीना जो राजस्थान के जैसलमेर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं और शपथ लेंगे अथवा प्रतिज्ञा करेंगे। महोदय, आप शपथ लेंगे अथवा प्रतिज्ञा करेंगे? आप किस भाषा में शपथ लेना चाहेंगे? In English. I, Raghavendra Prasad, having been elected as a member of Lower House of the Youth Parliament, do hereby swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of my country, and that I will faithfully discharge the duties upon which I am about to enter. Miss Novita Chatterjee, who is elected from Durgapur constituency of West Bengal, will now take an oath or an affirmation. Madam, do you want to take the oath and affirmation? Oath, please. In which language would you like to take the oath? In Bangla, please. আমি নমিতা চ্যাটার্জি গ্রুপ সংসদের সদস্যে নির্বাচিত হয়েছি। ঈশ্বরের নামে শপথ যে আমি সত্য বিশ্বাস রাখব এবং আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ভারতের সংবিধানের প্রতি অনুরোধ যা আমি বাঁচায় রাখব। ভারতের সার্বভৌমত্ব এবং অখণ্ডতা বিশ্বাসের সাথে দায়িত্ব পালন করব, যার উপরে আমি প্রবেশ করতে যাচ্ছি। Honorable members, with great sorrow and regret, I inform this House about the sad demise of former Prime Minister of Japan, Mr. Shinzo Abe, who was shot dead in the southern city of Nara in Japan on 8th July 2022. He was a great statesman and the chief architect of Japan's free and open Indo-Pacific policy. His death has created a huge void. Indeed, it's a big loss for the entire world. Honorable Speaker Madam, मैं श्री शिंजो आबे जी के निधन पर अपने हृदय की गहराइयों से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जैसा कि सदन के सभी सदस्य इस बात से अवगत हैं कि शिंजो आबे जी से मेरा परिचय बहुत पुराने समय से रहा है। वे स्वभाव से संवेदनशील थे एवं मानवीय वेदनाएं उन्हें बहुत पीड़ा पहुंचाती थी।
स्पीकर मैडम, दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान के प्रमुख नेताओं में उनका नाम सबसे पहले लिया जाता था। वो उन चुनिंदा नेताओं में से थे जिन्हें 2 बार जापान के प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ। शिंजो एबे जी की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि फोर्ब्स ने वर्ष 2018 में उन्हें दुनिया का 38वां सबसे ताकतवर व्यक्ति घोषित किया था। स्पीकर मैडम, वो एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिसने चीन के खतरे को समझते हुए क्वाड जैसे उपकरण की परिकल्पना की। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और हमें स्वयं को भी उसका सही से संज्ञान कराया और तभी क्वाड संभव हो पाया है। अर्थव्यवस्था और वैश्विक मामलों पर उनकी कुशाग्र दृष्टि ने मुझ पर हमेशा एक गहरी छाप छोड़ी है। और तो चीन की आक्रामक नीतियों एवं नॉर्थ कोरिया जैसे पड़ोसी को ध्यान में रखते हुए आबे ने एक बार फिर से जापान की सैन्य शक्ति को पटरी पर लाने का प्रयास किया। स्पीकर मैडम, आज भले ही वो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उन्हें सदैव एक दूरदर्शी नेता के रूप में याद किया जाएगा। Honorable Speaker Madam, Prime Minister Shinzo Abe was a towering global statesman and outstanding leader and a remarkable administrator. He spearheaded Abenomics policy, a comprehensive policy package aimed at making Japan strong by reviving the economy from the doldrums of inflation while maintaining fiscal discipline. Internationally, he has been credited with holding the Trans-Pacific Partnership, a massive trade agreement between 11 countries. His achievements are the torch bearers for the people of this country and especially for the young generation. We all are shocked at the tragic assassination of a friend. I extend my heartfelt condolence to the bereaved family. The House may stand in silence for a while to express the deep sorrow. Secretary General, may please convey the message of condolence to the bereaved family. Yes, ma'am. प्रधानमंत्री जी नए मंत्रियों का परिचय कराएंगे अब। स्पीकर मैडम, मैं आपसे और आपके माध्यम से संपूर्ण सदन का अपने नए साथी मंत्रियों से परिचय कराने में अत्यंत हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ। श्रीमती शाहिदा फारूकी, रेल मंत्री। श्री अनिरुद्ध पटेल, एजुकेशन मिनिस्टर। धन्यवाद। As you all know, that motion of thanks was proposed by Ms. Shubhra Mehta and seconded by Mr. Shiva Mohanty. Honorable Prime Minister will render his reply to the motion of thanks on the presidential address at the joint session of Lok Sabha and Rajya Sabha. Honorable Speaker Madam, I am here to reply on motion of thanks on the presidential address. The Honorable President has already discussed in detail regarding the aspiration of India in his speech. I am also grateful to all the respected members who have given their views on this address. स्पीकर मैडम, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कोरोना काल के बाद विश्व एक नए वैश्विक व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है और इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि दुनिया तेजी से नई व्यवस्थाओं को अपना रही है। मैं सोचता हूँ कि हमें इस अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। भारत एक लीडर के रूप में आगे आ सकता है और हमारे लिए ये समय एक सुनहरा अवसर है। स्पीकर मैडम, यदि हम आज से ही संकल्प लें, दूरदर्शिता के साथ निर्धारित दिशा में चलें, तो निश्चय ही ऐसा संभव है कि जब वर्ष 2047 में हम अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी मना रहे होंगे, तब तक हम अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य से भारत को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा सकेंगे। ये एक दिवसों में नहीं है, परंतु ये भी सच्चाई है कि वहां तक पहुंचने के लिए हमें कठोर परिश्रम करना होगा, आत्मचिंतन करना होगा और आत्ममंथन भी। हमें समझना होगा कि प्रगति की राह पर आगे बढ़ने का सपना लेकर हमने शुरुआत तो की थी, परंतु न जाने कहां भटक गए, क्या गलती की। साथियों, एक कविता जो मुझे बहुत प्रिय है
उसकी कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। यदि अध्यक्ष महोदय की आज्ञा हो तो मैं जरूर सुनाना चाहूंगा। जरूर प्रधानमंत्री जी, जरूर। हो गए हैं स्वप्न सब साकार, कैसे मान लें हम, टल गया सर से व्यथा का भार, कैसे मान लें हम, आ गया स्वतंत्र चेतना आने न पाई, प्रगति के नाम श्रद्धा और श्रम को दी विदाई, इस भयंकर मौज को पतवार कैसे मान लें हम, टल गया सर से व्यथा का भार, कैसे मान लें हम। मुझे लगता है कि हमने जो मेहनत करना और अपने जीवन मूल्यों को इज्जत देना छोड़ दिया है, शायद इसी की वजह से हम पीछे रह गए हैं। हालांकि बीते वर्षों में हमने कई मूलभूत व्यवस्थाओं में मजबूती लाने का प्रयास किया। गरीब को ऊपर लाने के लिए कई योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, बेहतर मनरेगा एवं उज्ज्वला योजनाएं आदि लाई। सच में गरीब की आंखों में जब खुशियों की रोशनी होती है तो वो संपूर्ण देश की खुशियों को ताकत देती है। स्पीकर मैडम, दुनिया अभी भी कोविड से जूझ रही है। मानवता ने पिछले 100 वर्षों में इस तरह की कोई चुनौती नहीं देखी। ये सच में निंदा का विषय है कि हमारे विपक्षी बंधुओं ने इस वैश्विक महामारी को भी अपनी दलगत राजनीति के उपयोग में लाया, किंतु इसके दौरान हमारे देशवासियों का व्यवहार, अपनी स्वयं की वैक्सीन के प्रति जागरूकता निसंदेह सराहनीय है। आज आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत देश में 80,000 से अधिक जन कल्याण केंद्र निःशुल्क जांच कर रहे हैं और साथ ही अन्य प्राथमिक सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। स्पीकर मैडम, गत वर्ष 2021 की EPFO पेरोल के आंकड़ों से ये पता चलता है कि लगभग 1,20,00,000 लोगों ने EPFO में अपना नाम दर्ज कराया है। ये सभी औपचारिक सेवाएं हैं, यानी बेरोजगारी की समस्या के समाधान के प्रति हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं। मेक इन इंडिया की हमारी कोशिश भी इस दिशा में एक कदम है। मैडम, कुछ लोगों को इस बात से बहुत परेशानी है क्योंकि इसका अर्थ है कमीशन के रास्ते बंद, तिजोरियां भरने के रास्ते बंद, घूसखोरी बंद। अध्यक्ष महोदय, जरा देखिए क्या कह रहे हैं। इनके अनुसार तो हम सभी भ्रष्ट हैं, हमारी नीतियां गलत कार्यों को बढ़ावा देती हैं। ये तो सरासर अपमान है। हम बेईमान, आप ईमानदार। प्रधानमंत्री जी, अपने आप को सही बताने के लिए दूसरों को गलत ठहराना ये सही नहीं है। बात तो पूरी करने दीजिए। प्रधानमंत्री जी को अपनी बात कहने दीजिए। स्पीकर मैडम, वास्तव में ये लोग कर रहे हैं देश के उद्यमियों के सामर्थ्य का अपमान, देश के युवाओं का अपमान, देश की इनोवेशन क्षमता का अपमान। पर मैं सभी को ये जरूर बताना चाहूंगा कि इस विरोध से कुछ नहीं होगा क्योंकि देश का नौजवान अब जाग चुका है। स्पीकर मैडम, यदि हम सब गांधी जी का सम्मान करते हैं तो हमें उनके आत्मनिर्भर भारत के सपने को समझना होगा। देश को विश्व के सर्वोच्च शिखर के स्थान पर पहुंचाने के लिए सामूहिक भागीदारी एवं सामूहिक जिम्मेदारी के महत्व को समझना होगा। मैं अपने विपक्षी साथियों से यही कहना चाहूंगा कि आप मंथन कीजिए, विचारिए कि कहीं आप इस महत्वपूर्ण समय को हमारी आलोचना करने में तो बर्बाद नहीं कर रहे हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप सचेत हो जाइए। मेरी और मेरे दल की आलोचना करने के मौके आपको मिलते रहेंगे। वक्त की जरूरत को समझिए। स्पीकर मैडम, मैं पुनः अपने विपक्ष के साथियों से यही कहना चाहूंगा कि अमृतकाल भारत की विकास की यात्रा में सकारात्मक योगदान का समय है। राजनीति अपनी जगह है, देशभक्ति अपनी जगह है। आइए आपसी मतभेद भूलकर हम सब मिलकर देश के लिए जिए, आगे आए और कोशिश करें कि पिछले 75 वर्षों में जो भी कमी रह गई है उसे सुधारें, कोई कोताही न बरतें। मुमकिन है सफर हो आसान, अब साथ भी चलकर देखें। मुमकिन है सफर हो आसान, अब साथ भी चलकर देखें। कुछ तुम बदल कर देखो, कुछ हम बदल कर देखो। मैं एक बार फिर से राष्ट्रपति जी के उद्बोधन पर धन्यवाद का अनुमोदन करता हूँ। आपने जो अवसर दिया उस पर मैंने अपनी ओर से स्पष्टीकरण का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। And now we begin the question hour. Question number 101, Ms. Almaz Shahid. Honorable Speaker Madam, will the Finance Minister be pleased to state A. The latest state of inflation and the wholesale price index of India. B. The legal
Speaker, Madam. For aid, I would like to say that our Indian economy is gripped by unprecedented inflation. Even though the annual inflation rate in India edged down to 7.01% in June 2022 from 7.04% in the previous month, it remained above the RBI target range of 2% to 6% for the sixth straight month. Speaker, Madam, if we take year 2011-12 as the base year, then at present the inflation rate is 15.38% and the wholesale price index is 152.3. For B, it is stated that the current spike in inflation is the result of steep rise in the crude oil prices. Recently, the crude oil price has risen to $83.56 per gallon from $55.17 per gallon across the world. This has increased the import cost for some of the essential commodities everywhere. Also, following the Russia-Ukraine war, there has been a disruption in the global supply chain, which triggered Indonesia to change its export policy and has led to lower palm oil imports. Moreover, how can we forget the role of COVID-19 in increasing the problems in everyone's life? And also, the high fuel prices have had a spillover effect on transportation and made every commodity expensive. Thank you. Supplementary question by Ms. Prerna. Honorable Speaker, Madam. Will the Finance Minister be pleased to state the initiative the present government is planning to take to contain this issue? Thank you, Madam. Adharaniya Vitt Mantri. Speaker, Madam, we admit that the current geopolitical situation and soaring prices may slow down the growth. Ironically, this is happening at the time when the world's economy is striving to emerge from the slump caused by the coronavirus pandemic. Speaker, Madam, I would like to say that as a part of an anti-inflationary measure, for the first time since 2018, the Reserve Bank of India has raised the repo rate by 4 basis points. This is done to control and monitor money flow into the banking system. मंत्री जी, बढ़ी हुई रेपो रेट से जिन लोगों ने बैंकों से कर्जा ले रखा है, उनकी ईएमआई भी बढ़ जाएगी। यह तो उपभोक्ता की जेब पर एक भारी प्रहार होगा और इससे रोजमर्रा की जिंदगी और भी दुश्वार हो जाएगी। कृपया शांत रहिए, सदन की मर्यादा बनाए रखिए। Honorable Speaker, Madam, I would like to assure that we are trying our level best. Madam, we are looking at the agricultural sector as an enormous opportunity. On priority basis, we are focusing on boosting India's agricultural export, making policies to increase farmers' income and offset potential headwinds to counter inflation. We are hopeful that government projects like Gati Shakti and production-linked incentive schemes will drive investment. We are also expanding our petroleum baskets across West Asia, Africa, and North and South America. However, RBI will continue to calibrate its policy with the goal of preserving and fostering macroeconomic stability. अगला प्रश्न संख्या 102 श्रीमती भानुमति अय्यर। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर स्थिति से बचने के लिए क्या कदम उठाए हैं व वर्तमान स्थिति को देखते हुए यदि
Speaker Madam, will the Union Minister of State Home Affairs be pleased to inform the House about the plan of bringing the concept of One Nation, One Election as the need called for after observing havoc in 4 state elections during the COVID time? Thank you, Madam. Honorable Union Minister of State Home Affairs. Honorable Speaker Madam, I think everybody in the House is aware of the fact that until 1967, simultaneous elections were the norms in India. However, due to premature dissolution of some legislative assemblies in 1968 and 1969, the cycle got distorted. Moreover, our government is planning to bring a new bill in the House, most probably in the next session. सच में लाया नहीं जाएगा या फिर हमेशा की तरह सिर्फ बातें बनाई जाएंगी, उम्मीदें जगाई जाएंगी, परंतु होगा कुछ नहीं। Please maintain silence and sit down. मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जो भी मंत्री अपनी बात कह रहे हैं, उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए और सदन की गरिमा बनाए रखिए। Thank you, Madam. And the debate will be mainly around these issues. First, financial cost of conducting elections. Second, cost of repeated administrative fees. Third, visible and invisible cost of different political parties. Fourth, campaigns and finance cost of different political parties. Thank you, Madam. प्रश्नकाल समाप्त हुआ. Now it's time for 0 hours. प्रातः 10 बजे से पूर्व मुझसे कुछ सदस्यों ने प्रश्न पूछने की अनुमति चाही थी. वह अब अपना प्रश्न पूछ सकते हैं. मिस्टर आशीष रस्तोगी. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि भारत में मंकीपॉक्स की वर्तमान स्थिति क्या है और इससे लड़ने के लिए आपकी सरकार क्या कदम उठा रही है? धन्यवाद। Honorable Health Minister. माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सब कोरोना से सहमी इस दुनिया के सामने मंकीपॉक्स एक नया खतरा बनकर खड़ा हुआ है। वर्ल्ड हेल्थ नेटवर्क के आंकड़े बताते हैं कि अब तक दुनिया के कुल 58 देशों में 3,417 मामले आ चुके हैं। हमारी सरकार ने सचेत रहने की आवश्यकता को समझते हुए पहले ही नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को निर्देश दे दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, चिंता हमें भी है यदि हमारे यहाँ मंकीपॉक्स के केसेस बढ़ते हैं अथवा रिपोर्ट हो गया है। रिपोर्ट तो हो गया मंत्री जी, आप तो बड़े देखोई में लिए हैं, आपको तो पता भी नहीं। कल ही केरल के कोलम में पहला मरीज नजर में आया है। मंत्री जी, वह मरीज तो बाई चांस पकड़ने आ गया, ना जाने कितने तो आंख बचाकर निकल गए होंगे। थैंक्स टू योर लॉ गाइडिंग सिटीजन एंड द लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज। अध्यक्ष महोदय, मैं भी यही बताने जा रहा था। देश के पहले मरीज का संज्ञान ले लिया गया। मरीज यूएई से आया था। प्रारंभिक जांच पर लक्षणों को देखते हुए उसे व उसके माता पिता को तिरुवनंतपुरम के मेडिकल कॉलेज में निगरानी के लिए रखा गया है और साथ ही गहन परीक्षण के लिए उसके सैंपल को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी पुणे भेज दिया गया। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के उत्तर में मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार इस वायरस से लड़ने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है, परंतु हम किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं उठाना चाहते। हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और सभी राज्य सरकारों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। स्पीकर सर, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन कैन बी यूज्ड until monkeypox vaccine comes. We are also thinking about ring vaccination, which is a tried and tested technique. We are also planning to use risk communication on priority basis to spread awareness. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारी सरकार पूर्ण रूप से सतर्क है। हम इस स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं और हम इस महामारी को प्रकोप नहीं करने देंगे। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, क्या ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव्स यह बताने की कृपा करेंगी कि सहकारी समितियों के कारोबार में सुगमता लाने से संबंधित जो प्रक्रियाएं हैं उनको कारगर बनाने के लिए सरकार के द्वारा अभी तक कुछ किया गया है या नहीं?
मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, सहकारिता के क्षेत्र में संभावनाओं को देखते हुए ही अलग से कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य देश में सहकारिता को बढ़ावा देना और साथ ही इसके लिए अलग से प्रशासनिक, कानूनी और पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार करना है। अध्यक्ष महोदय, हालांकि हमारा मंत्रालय अभी नया है, पर मुझे ये बताने में बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि इतने कम समय में भी हम कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले पाए हैं। हमने एक रोस्टर सहकारी विभाग बनाया है और साथ ही कुछ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऋणों की व्यवस्था की है। अध्यक्ष महोदय, हालांकि मेरे समक्ष बैठे हुए विपक्षी साथियों ने भी इन विषय पर सोचा जरूर था, पर सिर्फ सोचकर ही रहे, परंतु हमारी सरकार ने इन विषयों पर बारीकी से विचार विमर्श कर या फिर यूं कहूं कि गहराई से सोचकर निम्न वर्ग के लोगों के लिए भी समाधान जुटाने का प्रयास किया है, जैसे ज्ञान सागर योजना। इस योजना के अंतर्गत कोऑपरेटिव में कार्यरत लोगों को और उनके बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करवाने के लिए यदि वे देश में रहकर पढ़ते हैं तो 3 लाख तक का, और यदि विदेश जाते हैं तो 5 लाख तक का ऋण केवल 5% ब्याज दर पर दिए जाने की सुविधा उपलब्ध करवाई है। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 0.5% दर पर ब्याज दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, योजना का उद्देश्य देश में शिक्षा के पूरे अवसर उपलब्ध करवाना है। इसी प्रकार शहरी किसान कार्ड योजना, इस योजना के अंतर्गत खाद, बीज या डीजल आदि उपलब्ध न होने की स्थिति में कार्डधारी किसान पास की क्षेत्र समिति से खाद या बीज आदि प्राप्त कर सकते हैं। 5 लाख नए कार्डधारकों को इस स्कीम से जोड़ने की योजना है। इसी प्रकार सुगम क्रेडिट कार्ड स्कीम, इसके अंतर्गत लघु उद्यमियों, छोटे व्यवसायियों, दस्तकार और युवाओं को 5 लाख तक की साख उपलब्ध करवाई जाती है। अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर बात का विशेष उल्लेख करना चाहूंगी कि 25,000 की साख के लिए तो किसी कोलेटरल सिक्योरिटी की भी जरूरत है। इसी प्रकार कई और योजनाएं जैसे विकल क्षतिपूर्ति योजना पर भी कार्य किया जा रहा है। धन्यवाद महोदय। मंत्री महोदय, कृपया यह बताइए कि जो महिलाएं इस तरह के उपक्रमों से जुड़ी हुई हैं, उनके लिए क्या कुछ नए प्रावधान बनाए जा रहे हैं? यदि हाँ, तो विस्तार से बताएं। मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव। अध्यक्ष महोदय, कोऑपरेटिव्स में काम करने वाली महिलाओं को बिना अचल संपत्ति बंधक रखे ऋण उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत उन महिलाओं को जो कुटीर में ग्रामीण उद्योग जैसे टोकरी बनाना, पापड़ बनाना, सिलाई, कढ़ाई, बुनकरी इत्यादि में शामिल हैं, उन्हें 5 लाख तक का ऋण 5 वर्षों के लिए केवल 1% ब्याज दर पर दिया जाता है। धन्यवाद। शून्यकाल समाप्त हुआ। नो मोर क्वेश्चन प्लीज। Breach of privilege, sir. Yes, please. Honorable Speaker, sir, there has been a serious breach of privilege by a member of the ruling party. A few days back, a confidential issue regarding the proposed strategies by the government to fight the profound security implications of cyber attack was leaked into the media, and now there is a chaotic debate on every TV channel. Speaker, sir, I request my friends in the ruling party to get themselves aware about the rules and regulations so that they will not be embarrassed or ashamed in front of those who elected them to be their representatives. रमेश जी, क्या आपने अपनी पूरी सूचना दी थी? Yes, sir. I have already given the notice this morning. Okay, it will be examined and you will come to know about it. Thank you. Now papers to be laid. माननीय शहरी विकास मंत्री महोदय, आपकी अनुमति से सभा पटल पर रखता हूँ राष्ट्रीय खनिज विकास निगम हैदराबाद की वर्ष 2020 से 2021 की रिपोर्ट की सरकार द्वारा पुनरीक्षा व राष्ट्रीय खनिज विकास निगम हैदराबाद की वर्ष 2021 से 2022 का वार्षिक प्रतिवेदन परीक्षित लेखा और उन पर नियंत्रण महालेखा परीक्षक की टिप्पणी। मिनिस्टर ऑफ एटॉमिक एनर्जी। So, with your permission, I would like to lay down the following. Annual report of the Nuclear Power Corporation
Honorable members, I have to make an important announcement. On my own behalf and on behalf of the House, I have great pleasure in extending a warm and hearty welcome to the honorable members of Singapore Parliamentary Television who are on visit to India and they arrived on 21st July 2022 and are now sitting in the special box. We wish them a very happy and a comfortable stay in our country. महासचिव युवा संसद की राज्यसभा से प्राप्त संदेश पढ़ूंगी। सर, मुझे युवा संसद की राज्यसभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है। युवा संसद की राज्यसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विभाग के अनुसार मुझे अवैध आवेदन पर 21 के प्रति तथा उसके साथ प्रति संलग्न करके सभा पटल पर रखने का निर्देश हुआ है। ये विधेयक राज्यसभा द्वारा दिसंबर 2021 की हुई बैठक में पारित किया गया था। सेक्रेटरी जनरल सभा द्वारा पारित किए गए विधेयक और उसकी एक प्रति संलग्न कर सभा पटल पर रखेंगे। जी मैं रखता हूँ। माननीय शहरी श्रम मंत्री विधेयक का पुनर्स्थापन करें। महोदया, नए कर्मचारी भविष्य तथा प्रकीर्णों पर अधिनियम 1952 में संशोधन के लिए विधेयक पुनः स्थापित करने की अनुमति चाहती हूँ। प्रश्न यह है कि कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रखंड उपबद्ध अधिनियम 1952 में संशोधन करने के लिए विधेयक पुनः स्थापन करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो इसके पक्ष में है कृपया हाँ करें। जो इसके विपक्ष में है कृपया ना करें। मैं समझती हूँ कि हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, अतः अनुमति दी जाती है। महोदया, मैं प्रस्तुत विधेयक को पुनः स्थापित करती हूँ। अब ध्यान आकर्षण प्रस्ताव सदन पटल पर चर्चा के लिए लाया जाएगा। सुश्री अनन्या बिश्नोई। अध्यक्ष महोदया, हमारे पड़ोसी देश चीन ने पूर्वी लद्दाख के अक्साई क्षेत्र के इलाकों में एलएसी के पास मिसाइल और रॉकेट रेजिमेंट की तैनाती कर दी है। इसके अलावा चीनी सेना गैस और होटल बेस को अपग्रेड करने तथा हाईवे को चौड़ा करने और एयरस्ट्रिप बनाने का काम भी कर रहे हैं। आए दिन अखबार इस प्रकार की खबरों से भरे रहते हैं। चीनी हस्तक्षेप दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अध्यक्ष महोदया, आज सदन में मैं आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी का ध्यान इसी तकलीफदेह स्थिति तथा इसके कारण भारत की अस्मिता पर मंडराए खतरे की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। मंत्री जी, इस संदर्भ में सरकार क्या कदम उठा रही है, कृपया बताएं। ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को ये बताना चाहती हूँ कि भारत ने पूर्वी लद्दाख में गतिरोध उत्पन्न करने के लिए चीन को चेतावनी दे दी है। हमने उन्हें बता दिया है कि मौजूदा स्थिति के जारी रहने से न केवल दोनों देशों के बीच माहौल खराब होगा बल्कि आपसी संबंधों पर भी इसका गलत असर पड़ेगा। मई के शुरू में चीनी पक्ष ने गलवान घाटी क्षेत्र में भारत की सामान्य पारंपरिक गश्त को रोकने की कोशिश की और बाद में इसने पश्चिमी सेक्टर के भी अन्य क्षेत्रों में यथास्थिति बदलने की कोशिश की। महोदय, मैंने उनको बता दिया है ये अच्छी तरह से कि यह द्विपक्षीय समझौते के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। विशेषकर वर्ष 1993 में हुए समझौते के अनुसार दोनों पक्ष एलएसी से लगते सीमावर्ती क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी न्यूनतम स्तर पर रखें।
नवीनीकरण को अपनाते हुए साइबर और ई इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी बढ़ चढ़कर करना चाहिए। धन्यवाद। Srimati Mohini Naidu, Speaker Madam, the ongoing development along the line of actual control in Ladakh sector presents a policy challenge. I feel, Honorable Minister Madam, you need to realize that this is the time to reformulate our foreign policy. For example, for many years, India's strategic focus has primarily been Pakistan. Now the need of the hour is to think online on easing tensions with Islamabad and concentrate on government teaching. Thank you, ma'am. ये तो वही बात हो गई, पर उपदेश कुशल रहो तेरे। उपदेश देना तो सबको बड़ा आसान लगता है। ये तो आप लोगों की बनाई गई दोषपूर्ण नीतियों का नतीजा है कि आज हमारा देश इन विषमताओं से जूझ रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ, कहाँ गई थी आपकी दूरदर्शिता जब आपकी अपनी सरकार थी? हमारी सरकार तो अभी अभी आई है। कृपया शांत रहें। Honorable Defense Minister, give your statement, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि पिछले कुछ दिनों में भारत और चीन के संबंध में जो परिस्थितियाँ बनी हैं और कुछ हद तक अभी भी बनी हुई हैं, उनका सामना करने में हम पूर्णतः सक्षम हैं। हमारे कुछ साथियों का ये मानना है कि हमें चीन के साथ युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। तो इसके जवाब में मैं यही कहूँगी कि तैयार हो हर प्रकार से, परंतु हमारे देश में कभी भी पहल नहीं और वैसे भी इससे लाभ से अधिक हानि नहीं हुई। Honorable Speaker Madam, we understand this limitation involves the risk of escalation and that can be devastating given that both sides are established nuclear powers. LEC का सम्मान और संबंधित नियमों का सख्ती से पालन करना सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता का आधार है और हम भारतीय इस संरक्षण से भली भांति परिचित हैं तथा पूरी ईमानदारी से इसका पालन करते हैं। ऐसा नहीं है कि विभिन्न एजेंसियों द्वारा दी जाने वाली चेतावनियों से हम बेखबर हैं और ऐसा भी नहीं है कि विदेशी नीतियों में बदलाव की जरूरत पर हम आगे मुद्दे बढ़े हैं। हम प्रयास कर रहे थे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। धन्यवाद। Now the House will take up consideration of Police Reform Bill 2022. Home Minister, please. Honorable Speaker Madam, I request to move Police Reform Bill 2022 and now to consolidate and amend the law relating to the establishment and regulations of powers and duties of the police service. Madam, the very foundation of a nation is based on the rule of law. Of all the three organs of government, be it the executive, the legislature, or the judiciary, law is supreme. Nobody is above the law, as laid down in the Constitution of our country. Speaker Madam, the police is the protector of law on the field. The legislature may pass bills into laws, courts may issue orders, the executive heads may come up with policy documents, but it is the men in uniform who act as the custodians of law. Without the police, nothing can withstand the chaos of this diversified nation. मुद्दे पर आइए। अगर प्रस्ताव मानने की पड़ी है तो ना जाने मुद्दा में कितना लंबा होगा। क्यों? आप भी तो सोच ही सकते हैं। Please maintain silence. समय चाहिए किस समय? मंत्री जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। Honorable Madam, our police force needs to equip itself with dual role of providing, firstly, due consideration to basic human rights, and secondly, method which prioritize the security of the nation. Madam, I propose the following 7 provisions for Police Reform Bill 2022. The bill mandates social responsibilities of the police, that is, providing requisite assistance to the victim
अध्यक्षा महोदय, 22 सितंबर 2006 प्रकाश सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले ਦੇ ਵਿੱਚ सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी ਕੀਤੇ ਸੀ, जिन्हां ਦੇ ਵਿੱਚ केवल 7 दिशा निर्देशों का पालन करने ਨੂੰ कहा गया ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖਤਿਆ पुलिस अधिकारियों के कार्यकाल ਨੂੰ निर्धारित करने की गल कही गई सी, ताकि उन्होंने सिर उत्ते हर वेले ट्रांसफर की तलवार ना लटकी रहे, और नाल ही पुलिस कल्याण ब्यूरो के गठन की गल भी कही गई सी, जिन्होंने अज तक लागू नहीं किया गया। पर इस बात का ध्यान तो आप ही की सरकार को रखना चाहिए था। उस समय तो आप ही की सरकार थी। ये तो बड़ी बात हुई। आप गुरुजी बैनर खाए, दूसरों को उपदेश सुनाए। प्लीज मेंटेन साइलेंस। अमरीक सिंह जी को अपनी बात कहने दीजिए। जी महोदय, मैं इत्थे केवल इन्ना ही कह रहा हां कि हुण जब एनएचआरसी इस केस के रेफरेंस विच इस पुलिस शिकायत अधिकरण को स्थापित करने पर जोर दे रहा हां, तब जाकर लोगों की नींद खुली आएगी। हले तक तो सारे सोए पे सी, हुण खैर छड्डो जी, जब जागो कद सवेरा। मैनू की हालांकि मैंने इस गल पे विश्वास नहीं हैगा कि रूलिंग पार्टी सब कुछ देखभाल करी इस बिल को ला रहे हैं, पर फिर भी इस उम्मीद से कि आगे सब कुछ सही रहेगा, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। श्रीमती अम्मी वाजपेयी। Honorable Speaker Madam, police is one of the vital organs of the executive, which holds a pivotal role in maintaining the law. And to that matter, there should not be any partiality in the functioning of the police department. The legislation that this government has come in connection with police reforms is monstrous, inadequate, has a large scope of mismanagement. Some of the provisions, in fact, are contrary to the Constitution of India. Speaker Madam, it seems that this bill has more in it for the government than for the common people. So I outrightly reject it. Ms. Madhuri Shah. अध्यक्षा जी, पुलिस रिफॉर्म के इस प्रस्तुत विधेयक में तो मुझे खामियां ही खामियां नजर आ रही हैं, और इन खामियों को मद्देनजर रखते हुए मैं इस विधेयक का पूर्ण विरोध करती हूं। Ms. श्यामानंदनी। अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का तहे दिल से समर्थन करती हूँ। इसके अनुसार पुलिस थानों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा, मेडिकल सलाहकार समितियों का गठन किया जाएगा, पुलिस प्रशिक्षण केंद्रों की संख्याएं बढ़ाई जाएंगी, तो समेत ही अधिक पुलिसकर्मियों को समय-समय पर प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। ऐसा होगा तो इससे पुलिस वालों का मनोबल भी बढ़ेगा, और मुझे उम्मीद है कि वह डटकर हर चुनौती का सामना करेंगे और जनता की आवश्यकताएं अपने आप पूरी हो जाएंगी। धन्यवाद। सही कह रही हैं आप, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अच्छा महोदय जी, इन सुधारों के बाद पुलिस कर्मियों में सामाजिकता, नैतिकता और संवेदनशीलता का विकास होगा तो जनमानस उसे स्वतः ही स्वीकार करेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस विधेयक का पूर्ण रूप से समर्थन करूँगी। मिस्टर रियाज अहमद। Speaker Madam, main changes in the bill are Section 102 and Section 105. Section 102 says the chairperson is to be appointed by the government with consulting to the Chief Justice of India. On the other hand, Section 105 gives government authority to remove the chairperson. Therefore, this again gives power to the government. Speaker Madam, opposition reject any step or idea to make police puppet in the hand of government. Ms. Shailja Gandhi. Honorable Speaker Madam, this bill gives government power to interfere in police proceeding in constitutional way. It is mockery of democracy. This government has no knowledge of our constitution. This legislation is fraud. Sorry to say, madam, but it can't be accepted.
This bill is prepared to keep police under the clutches of government, and we won't let this happen. We will fight against this. Honorable Home Minister. Honorable Speaker, Madam, it is indeed a great learning experience to get the vibrant input of all the members of this House. The first issue that I would like to clarify upon is regarding reservation. All the constitutional provisions have already been taken into consideration for reservation in the recruitment of the police personnel. The Honorable Opposition Leader also raises the contention regarding Section 120, which prohibits the filing of complaints after 6 months. I again believe it is a step to ensure judicial awakening among the masses. Speaker, Madam, I humbly request the House to consider the fact that since independence, a lot of things have changed in our administration, and government processes have had us achieve the status of a developing nation, and we are set to become a developed one in the coming decade. Speaker, Madam, it is my humble request to everyone present in this House to strengthen the police force by signing their assent to this bill. I strongly advocate that the House may pass the bill. The question is that the police to consolidate and amend the law relating to the establishment, regulation powers and duties of the police services are for matters connected therewith and incidental here to be taken into consideration. Those who are in favor will say ayes. Ayes. Those who are against will say no. No. I think ayes have it. Ayes have it. Ayes have it. The motion is adopted. Now cross consideration. The question is that Section 102, Section 105 and Section 120 stand part of the bill. There is no amendment in Section 102 and Section 105. Mr. Riyaz Ahmed, are you moving it? No, madam. In view of the reply given by Home Minister, I am not pressing for my amendment. Now the question is that Section 102, Section 105 and Section 120 stand part of the bill. Those who are in favor will say ayes. Ayes. Those who are against will say no. No. I think ayes have it. Ayes have it. Ayes have it. The motion is adopted. Section 102, Section 105 and Section 120 stand part of the bill. The House is adjourned. Sign it out. Stage.